Hello, good morning students. As you know, we discussing lesson number 10 circle, and you also remember that exercise 10.4 we skipped. Actually, 3 sums are there that we have to do, remaining are excluded from the syllabus and they are long, as I told you in previous lectures. And maybe you feel somewhat complicated or difficult also. That's why I just kept them, and remaining all sums and observed questions we solve first. Okay, now let's try to understand that question. So now look at question number 1. Number 1 of 10.4, page number 179. Your textbook must be open. Okay, if you are not having textbook, notebook and pen, then just pause your video and just keep all of them available. Okay, now there are 2 circles of radii 5 and 3 semi intersect at 2 points, means circles are intersected, and the distance between their center is 4. Find the length of the common chord. What is meant by common chord? What they are telling, just try to understand here. Suppose this is the bigger circle, this is the smaller circle. Okay, this is the suppose center of bigger circle, this is of smaller. Okay, they have given, so common chord means this is called common chord. Why? Common means of both, so it is chord of first circle as well as second circle. So this is common chord, and they are asking length of this one. Suppose that is A, B, chord is A. So it is of both circles, and they given us one radius 5, another radius 3, and they are asking AB. They also given PQ equal to 4. PQ equal to 4. Okay. PA equal to 5. QA equal to 3. And AB they want. So this is the overall description, measurements and figure. Now let's suppose here any point M. Okay. So that we have to suppose. This is not simple sum, quite long also, and you have to concentrate more and more, then only you can understand. Okay, तो ये हमने जो ड्रॉ किया ना PQ और AB, तो PQ हमने ड्रॉ किया ना, वो एक्चुअली कॉमन कोड AB को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, और परपेंडिकुलर भी है. सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो फर्स्ट PQ is perpendicular, और थोड़ा सपोज भी कर ले, हमने हमारा खुद का नेम दिया है तो सारा सपोज भी कर लो. ओके, सो सपोज AB is common chord, AB is common chord. ये आपको लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ओके, वो आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था. So AB is common chord of circle P, 5. ये सर्कल का नोटेशन है. सर्कल सेंटर P, रेडियस 5, एंड सर्कल Q, 3 सेंटी. ये शॉर्ट में सर्कल का डिनोट या डिस्क्राइब करने का एक तरीका है. ओके, नाउ ये हमने एक्स्ट्रा एम नेम दिया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज द कॉमन कोड PQ. तो लेट्स PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वो आपको एज्यूम कर लेना है, वो हमने आगे डिस्कस नहीं किया है. एक्चुअली कहीं ना कहीं आ गया है, लेकिन वो एक्सक्लूडेड पोर्शन में आया है. ओके, सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर. तो इसका मतलब यहाँ राइट एंगल भी बन रहा है
दोनों साइड, और ये पार्ट इक्वल नहीं। सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, अभी रही बात दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, एक ए साइड वाला, एक ए साइड वाला, मतलब AMP एंड AMQ। ओके, तो दोनों में ए साइड कॉमन है AM, और दूसरी बात ये लोगों ने पूरा PQ दिया है, तो हम काम करते हैं, कोई एक पार्ट हम एक सपोज कर ले और दूसरे को 4 माइनस एक्स बोले, तो सपोज MQ इज x, सो दिस इज 4 माइनस एक्स। ओके, आप फिगर थोड़ी बड़ी बनाना। ओके, तो ये सब दिखाई दे इसमें। सो राइट डाउन PQ इक्वल टू 4। ओके, सो इफ PM इक्वल टू, ओके, M की बात पे हमें लिखनी पड़ेगी पहले कि M इज व्हाट। ओके, सो लेट PQ इंटरसेक्ट AB एट M। तो देखो सारे फिगर डिस्क्राइब कर दिए, क्योंकि ये लोगों ने सेंटर का नेम नहीं दिया था, कोड का नेम नहीं दिया। ओके, और वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दोनों सेंटर को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है वो, और कॉमन कोड, वो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ उसका भी नेम नहीं दिया, वो भी हमने दे दिया। ओके, सो लेट PQ इंटरसेक्ट एट M। सो PQ इक्वल टू 4, सो इफ MQ इक्वल टू x, देन PM इक्वल टू 4 माइनस एक्स क्यूब। आपको पता है टोटल दोनों का 4 सेंटीमीटर है, दोनों का सम। तो अगर कोई एक आप x सपोज करो तो दूसरा टोटल माइनस एक्स होता है, तो ये टोटल मिला के 4 है, इसमें से ये पार्ट को हमने x सपोज किया था 4 माइनस एक्स, या तो ये पार्ट को x बोलो तो वो 4 माइनस एक्स होगा। ओके, सो नाउ इन दोनों ट्राइंगल, in both right angle triangle you can apply Pythagoras formula, क्योंकि हमें x नहीं फाइंड करना, x मिलेगा तो सब मिलेगा। ओके, सो our main purpose is to apply Pythagoras formula in both ways, in this triangle PMA and QMA। ओके, तो हम दोनों में अगर Pythagoras formula अप्लाई करते हैं तो टर्न बाय टर्न करते हैं। पहले देखो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल AMP, और साइड में मैं यहां पर भी दूसरा ऑर्डर करूंगा AMQ। दोनों में पाइथागोरस फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि M पर राइट एंगल बन रहा है। ओके, और वो क्लियर किया है PM इज परपेंडिकुलर, फिर भी यहां लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एंगल है 90, और यहां भी एंगल है 90, क्योंकि हम जब भी पाइथागोरस फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फॉर्मेलिटी करते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है और कौन सा राइट एंगल है। ओके, अभी तक का फिर से मैं समझा दूं। पहले तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ की, बाद में हमने कॉमन कोड बनाया, सेंटर का नेम हमने दिया, सब कुछ हमारा था, और ये लोगों ने एक बिगर की रेडियस 5, स्मॉलर की रेडियस 3 थी, नेम भी हमने लिखा। ओके, ये नोटेशन भी देखो, सर्कल का नोटेशन कैसे होता है। ओके, और दूसरी बात यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने दूसरे कोई क्वेश्चन में से लिया है, वो ये है कि अगर आप PQ ड्रॉ करो, दोनों सेंटर को ज्वाइन करो, तो जो मिलने वाली लाइन है वो कॉमन कोड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ओके, सो PQ बिकम्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PM। ये अब जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर से लिया गया है, अभी आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्यों वो नहीं हम समझेंगे। ओके, ओके, और दूसरी बात M हमने नेम दिया था, वो M क्या है वो लिखा, तो यहां तक का सारा डिस्क्रिप्शन है, पहली 4 लाइन है वो डिस्क्रिप्शन। यहां से हमने सपोजिशन करके आगे बढ़ने की ट्राई की कि पूरा PQ 4 है, लेकिन इसमें 2 पार्ट हुआ, तो कोई एक पार्ट को x बोलो तो दूसरा ऑटोमेटिक 4 माइनस एक्स होगा। नाउ बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने नेम लिखा और कौन सा राइट एंगल है वो लिखा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल यहां भी होगा। यहां कौन हाइपोटेन्यूज होगा, AQ स्क्वायर। AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू रख देते हैं यहां 5, PM नहीं है, सॉरी PM हमने सपोज किया हुआ है, और AM नहीं है, AM दोनों में रिपीटिंग है।
यही तरीका है फाइंड करने का। दोनों में एम होगा तो हम फाइंड कर सकेंगे। यहाँ लिखो 3 वाई क्यू इज 3, एम नहीं है लेकिन रिपीटेंगे यहाँ पर और एक्स। तो अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, हम दोनों में एम स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। ओके, तो टेम्पररी एम स्क्वायर निकल जाएगा, एम स्क्वायर निकल जाएगा और हमें एक्स मिलेगा। बस एक्स मिलने के बाद हमें वो खुद भी मिलेगा। तो मैं यहाँ से पहले तो ये 25 और ये a माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाइनोमियल का स्क्वायर, सीधा स्क्वायर मत लगाना, बाइनोमियल का स्क्वायर ट्राइनोमियल होता है। ओके, अभी इसको यहां शिफ्ट करो सब, तो am स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, तो 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना मुझे am स्क्वायर है। मैंने सबको यहां शिफ्ट किया। ओके, तो यहां मिला के 9 हो गया, 25 माइनस 16 19, तो 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1। ओके, ऐसे ही सामने से एक रिजल्ट मिलेगा, वो भी am स्क्वायर का ही लाओ, क्योंकि कोई एक को टेम्पररी आप एलिमिनेट करो तो कोई एक मिलेगा। तो हमें इक्वालिटी करने के लिए m स्क्वायर दोनों में रिपीटिंग है, इसको ला रहे हैं। x को नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ x की 2 टर्म है, तो x को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड नंबर है। मेरी तरह आप भी पैरेलल लिख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन कंपेयर 1 and 2, यू कैन कंपेयर 1 and 2। ओके, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप यहां बीच में लिखना, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं कंपेयरिंग 1 and 2। क्या होगा, बस दोनों एम स्क्वायर है तो ये और ये कंपेयर करो, तो 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा हुआ ना, दोनों एम स्क्वायर का ही एक्सप्रेशन है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, एक ही बात बता रहा है। ओके, सो नाउ शिफ्ट एवरीथिंग हियर, मतलब x एक साइड, नंबर सामने, तो मैं 8x यहाँ रखा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, सामने से माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, प्लस ये 9 यहाँ ही था, यहाँ का 9 सामने है। कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को सामने। तो ये तो कट हो गया, यहाँ रहा 8x, तो 8x इक्वल टू 0 रहा, इसका मतलब x इक्वल टू 0/8, मतलब x इक्वल टू 0। तो हमें x इक्वल टू 0 मिला, थोड़ा ओड रिजल्ट मिला, नो प्रॉब्लम, x इक्वल टू 0 वी गॉट। ओके, इसका मतलब ये होगा कि q एंड m ओवरलैप होगा, तो q का सेंटर यहाँ पर ही होगा बिल्कुल। ओके, पहले से हमें पता नहीं होता तो हम तो ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे। सो दिस बोथ पॉइंट्स आर ओवरलैपिंग, x इज नथिंग, 0। ओके, तो मिल गया। अभी आपके पास देखो am के दो एक्सप्रेशन थे, कोई एक का यूज करो तो आपको am मिलेगा, बस am मिलेगा तो am मिल जाएगा क्योंकि इसका डबल, ये बाइसेक्ट हुआ। ओके, सो यूजिंग, मैं इसके बाद यहां आ रहा, ये देखना, ये जो यहां हमारा एक पार्ट खत्म हुआ था, दो इक्वेशन लाए, बाद में हमने ये किए। ओके, इसके बाद अभी हम यहां आए, तो यूजिंग 1 नहीं 2 में इसे मिल सकता है, कोई एक जगह x की वैल्यू रखो तो आपको am स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो am स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर, 9 माइनस 0 स्क्वायर, सो am स्क्वायर इक्वल टू 9, सो am इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि am स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें am चाहिए। बस am मतलब क्या, हाफ कोड है, कॉमन कोड का हाफ, तो अभी इसका डबल करो, सो AB इक्वल टू 2am, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन PQ, तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट हुआ, तो एक पार्ट 3 है तो कुल मिला के 6 होगा, तो AB इक्वल टू 2am इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 6। ओके, तो देयरफॉर अभी आप स्टेटमेंट में आंसर दो, क्यों, क्योंकि AB तो हमारा सपोज किया हुआ है,
Okay, so you can give your answer in statement that length of common chord is, इसमें देखो statement क्या बोला है लास्ट में, find the length of common chord. तो write down length of common chord is 6 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐसे हमारा सम खत्म हुआ है. मैंने पहले बोला था आपको कि क्वाइट लॉन्ग एंड मल्टी स्टेज सम थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है, समझने की ट्राई करेंगे. ओके, हम ऐसा डिफिकल्ट है ऐसा मानकर नहीं रखेंगे. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था, मैंने दोनों में पाइथागोरस अप्लाई किया और दोनों में एम स्क्वायर रिपीटिंग था, इसको सब्जेक्ट बनाया क्योंकि कोई एक को हम एक अननोन को हम रिमूव कर रहे टेम्परेरी. तो दोनों को कंपेयर किया, एक साइड वेरिएबल सामने कांस्टेंट मतलब नंबर x लिखा, बस x लिख के आगे आप x को यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. दोनों में से एक मैंने ये शॉर्ट देख के नंबर 2 का यूज किया, आपको 1 का यूज करना तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो m स्क्वायर 9 माइनस 0 स्क्वायर. ओके, सो मतलब 9, तो am इसका स्क्वायर 3, तो ab इसका डबल है, वहां से देखें क्योंकि am इज हाफ ऑफ ab. तो कॉमन कोड का हमें ऐसे लेंथ मिला. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसकी पीडीएफ में नहीं भेजूंगा क्योंकि मैंने नोटबुक में नहीं लिखा है, इसका ठीक से स्क्रीनशॉट लो और आपको ये बाद में फेयरबुक में लिख लेना. ओके, सो आई जस्ट गिविंग 1 मिनट फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू जस्ट पॉज योर वीडियो एंड यू कैन. ओके, और अभी आप नंबर 2 देख सकते हैं, सॉरी नंबर 5, बाकी सारे कैंसिल है, हम 1 5 6 ही कर रहे हैं. तो लुक एट नंबर 5, लुक एट नंबर 5. थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, समझने के ट्राई करो. Okay, I removing this one. Okay, I hope you taken a screenshot. यहाँ एक ही सर्कल पर 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के बीच के डिस्टेंस का कुछ बात की गई है. 2 के बीच में डिस्टेंस दिया गया, तीसरा डिस्टेंस नहीं है, वो फाइंड करना. 3 पर्सन है, सलमा, रेशमा एंड मंदिर. ओके, और जो बात है वो आप रीड कर लिया आपने. और इसने मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है. ओके, तो कोई एक जगह पे सलमा को बिठा देता हूं, यहां रेशमा और मंदिर को बिठा देता हूं. ओके, और यहां देखो इसने बोला है 4th लाइन में देखो, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मंदिर इज 6. सो ये सलमा, रेशमा एंड मंदिर, हमने इसके हिसाब से फर्स्ट लेटर सपोज किया. तो इसने ऐसा बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मंदिर ऑल्सो 6. ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, ये आर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर. ओके, और दूसरी बात सेंटर में हम डिनोट करेंगे क्योंकि बात ये है कि रेडियस दी गई है 5. ओके, सो आई जस्ट जॉइनिंग OS एंड OM ऑल्सो. ओके, क्योंकि ये भी 5 है क्योंकि रेडियस है एंड OS भी 5 है रेडियस. ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये RM को फाइंड करना है. ओके, और यहां कुछ नेम दे दे हम, सपोज M, कहां पर, ये पॉइंट, क्योंकि M तो यहां आ गया, वरना मोस्टली M फुट ऑफ परपेंडिकुलर को AM नेम देते, लेकिन यहां वो करेंगे. ओके, सो सपोज OM परपेंडिकुलर आर, और आप समझो ये कोड है, आर एम इज नथिंग बट अ कोड.
और कोड पर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा ही। क्यों परपेंडिकुलर होगा, बहुत लंबी स्टोरी है। एक्चुअली वो एसएल परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट भी करेगा, ओके। ओएल परपेंडिकुलर क्यों है, इसका थोड़ा रीजन देखना है, तो आप लिखो ट्रायंगल एसआरएम इज आइसोसेलेस, ओके। अगर ये आइसोसेलेस है तो यहां अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो ये परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर बनेगा, ओके। सो एसओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां भी ऐसी बात हुई, देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और व्हाट आर, ओके। इट इंटरसेक्ट, एसओ इंटरसेक्ट या तो ओएस इंटरसेक्ट, एल की बात करनी पड़ेगी, आर एम एट एल। तो फिगर मैंने डिस्क्राइब कर दी, ओके। एसओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों हुआ वो भी अब ज्यादा यहां डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वरना एक के अंदर दूसरे की स्टोरी आ जाएगी, ओके। आप एक समझने की जगह दूसरे ट्रैक पर जाएंगे। तो ये आप यहां भी एज्यूम कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ओएस इंटरसेक्ट आरएम, हमने नया एक पॉइंट दिया। अभी आपको करना क्या है, ये थोड़ा मेथड याद रखना। एक ओ पर से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या करोगे आप, यहां, ओके। इसको कोई भी नेम दे दो, सपोज एम एन एन दे दो, एन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। सो अगेन ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर एस। क्यों कर रहे हो आगे समझ जाएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू एस एन, एस एन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। और ये दोनों पार्ट इक्वल थे, ये साइड वाला और ये साइड वाला। एल को मैं यहां ले लेता हूं, थोड़ा ठीक से दिखने के लिए, ओके। अभी हम क्या करेंगे, तो हमने ये जो ओ एन ड्रॉ किया ना, वो ये कोण पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां भी बाइसेक्ट होगा, तो ये भी बाइसेक्ट है, ओके। ऑटोमेटिक वो हमारा है ना थ्योरम, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोण then it will bisect the chord also, तो कोड को बाइसेक्ट ही कर दिया। तो हम पहले यहाँ ओ एन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये तो कोई भी, ये साइड वाले दोनों एक ही, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो मेन ट्रायंगल ओ एन एम या तो ओ एन है, ओके। सो इन ट्रायंगल ओ एन एम, इन ट्रायंगल ओ एन एम एंगल एन इक्वल टू 90, ओके। यहां पे लिखो विच बाइसेक्ट यस। अगर आप ओ एन परपेंडिकुलर ऐसा किया तो बाइसेक्ट ही करेगा थ्योरम के हिसाब से। तो यहां पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ये ओ एन एम। तो हाइपोटेन्यूज हुआ ये, ओके, ओ एम स्क्वायर। सो राइट डाउन ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। यहां आप देख सकते हो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ एम हमें पता है फाइंड, ओ एन नहीं है, हमें फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना हो आप आगे समझो, अभी तो हम क्यों कर रहे हो वो नहीं समझो, क्या कर रहे हैं इतना समझो। एम एन 3 होगा ना, 3 स्क्वायर, ओके, क्योंकि दिस बाइसेक्ट, दैट्स व्हाई। सो राइट डाउन हियर रीजन by 3. So mn equal to Sm by 2 equal to 6 by 2 equal to 3. कहां से है, ओके, वो इसका हाफ था इसलिए। तो ये 25 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 9। सो 25 माइनस 9 60, मैंने माइनस किया, स्क्वायर रूट लिया, तो ओ ए मुझे मिला 4, लेकिन वो आंसर नहीं, ये मुझे 4 मिला, मैंने रख दिया, ओके। अभी हमने क्यों फाइंड किया ये समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम
ये ट्राइंगल एसओएम का एरिया दो तरीके से फाइंड करके कंपेयर करेंगे और इसमें से हम एलएम फाइंड करने की ट्राई करेंगे। कैसे आप देख सकते हो, देखो ओके, ये एक पार्ट हुआ। अभी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एसओएम या तो एमओएस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, एस इंटू ओएम। तो ये परपेंडिकुलर हमने क्यू ड्रॉ किया था, समझ में आया। एल्टीट्यूड बेस तो था ही 6, कि क्यू एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसमें थोड़ा पूछा है, लेकिन एरिया फाइंड करने के पीछे एक तरीका है, वो भी आप बाद में समझोगे। ओके, क्योंकि अभी मैं आपने समझा सकता हूँ और आप समझोगे भी। सो हाफ एसएम 6 और दिस इज 4। ओके, जो फाइंड किया है वो, और वो तो पहले से था। सो इट इज 2 3 6, so 3 4 12। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में है। ओके, नो मीटर। ओके, सो स्क्वायर मीटर। अभी हम वही ट्रायंगल का दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं। देखो, एरिया ऑफ एमओएस। दूसरा तरीका क्या, तो यहां एक एमएल भी बेस हुआ, किसका, एस होगा, ओएस। तो यहां मैं अगर बेस ओएस लू, बेस ओएस लू, ओके, और ये एल्टीट्यूड एलएम, ओके, एक रिजल्ट 1 मिला। अभी हम रिजल्ट 2 लाएंगे, वो भी इसका ही एरिया। तो हाफ इंटू ओएस, ओएस तो हमें पता है कितना है, 5 रेडियस। एलएम नहीं, कोई बात नहीं, वो हमें मिलेगा। तो ये दोनों एक ही बात बता रहे थे। सो कंपेयर बोथ ऑफ देम, जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम। ओके, तो कंपेयरिंग 1 and 2। तो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो हाफ इंटू 5 इंटू एलएम इक्वल टू 12। ओके, ये इक्वल टू 1 and 2। तो एलएम को सब्जेक्ट बनाओ, तो 12 ए 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 5 अपॉन 9, तो 12 2 24 अपॉन 5, तो 4.8 होगा। कितना होगा, 4.8। आप करके देख लेना, या तो ऊपर नीचे डबल कर दो, 48/10 कर दो, आसानी से हो जाएगा। ओके, बस बात मिली, क्योंकि एलएम है वो हाफ है, इतना ही पार्ट यहाँ है। सो आरएम इक्वल टू, आगे की तरफ, आगे के समय हमने क्लास में डबल किया था, तो आरएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल, तो 2 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। लास्ट में यूनिट भी लगा दो और स्टेटमेंट भी लिख दो। ओके, हमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना, कि ये जो है ये क्या है, तो रेशमा एंड मंदिर के बीच का डिस्टेंस है। सो राइट डाउन देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर is 9.6 meter. Okay, so distance between Reshma and Mandip is 9.6 meter. Again, I explain fast. पहले तो इसने बोला सलमा, रेशमा एंड मंदिर तीनों सर्कुलर कोई पाथ पर बैठे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6, सलमा एंड मंदिर also 6। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर। हमने नेम के हिसाब से सपोज किया। एक्स्ट्रा हमने एक रेडियस ड्रॉ की, OM एंड OS। तो OS ने इसको बाइसेक्ट भी किया, किसको, ये RM। OS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। ओके, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। ओके, और कहां इंटरसेक्ट कर रहे हो, OS इंटरसेक्ट RM एट व्हाट, वेयर, क्या। ओके, तो ये हमने OM पर, और एक एक्स्ट्रा बात अभी ये की, ये टोटल डॉटेड लाइन एक्स्ट्रा है टोटल। तो हमने एक और एक कंस्ट्रक्शन किया, SM पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM एल्टीट्यूड।
which bisect S and Q, वो थ्योरम के हिसाब से chord one perpendicular drawn from center to chord bisect also. Okay, so that is, तो वो सारी बात लिखी. तो अभी हमने ये ट्राइंगल जो अभी भी नया ड्रॉ किया ना वो फाइंड किया. कैसे फाइंड करो वो आप समझ सकते. ट्राइंगल आपके सामने. ओके, क्यों किया? क्योंकि अभी हम ये जो ट्राइंगल है ASOA, इसका दो अलग अलग तरीके से एरिया फाइंड कर और बाद में कंपेयर कर. ओके, तो एक तरीके से एरिया फाइंड किया, बेस इज SN, एल्टीट्यूड इज OA 12, वो 6 था, एक और हमने फाइंड किया. दूसरा ये SO बेस और ML या तो LM एल्टीट्यूड, तो इसमें भी OS मतलब रेडियस खुद 5. तो ये दो एक्सप्रेशन मिला, इसको कंपेयर किया तो हमने वो LM मिल गया 4.8, बस LM का डबल वही आ रहा है. ओके, सो दिस इज द सेकंड सम. अगेन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, देन यू हैव टू राइट सेम डिस्क्रिप्शन, सेम फिगर इन द फाइल. Okay, now look at last one, number 6. Okay students, so I just removing this one because I have to finish last sum also. This was quite long, just like that. तीनों इक्वल जैसे ही है और तीनों इक्वली लॉन्ग है. वहां 3 पर्सन एक सर्कुलर पाथ पर बैठे हुए हैं, सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस 12 मीटर है. ओके, और यहाँ डिस्टेंस सारे का इक्वल है. मतलब वो मैं फिगर अगर बनाऊं तो ये तीनों जो पर्सन है वो बैठे हुए हैं, तो तीनों इक्वल बनेंगे, वो लोगों ने ऐसा बोला है. और इसका सेंटर ये लो तो ये रेडियस